Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you classes from ML Confident Group of Schools. How are you all? Are you all fine? I think that you all must be fine. So students, this has been a frequently asked question regarding the revised syllabus. बार बार आप लोगों से एक इंक्वायरी आती रहती है कि रिवाइज सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, या फिर तो चैप्टर्स हटाना तो दूसरी बात है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो हमें कन्वे करनी है यहाँ से वो ये कि कई जो है क्वेश्चन पेपर में जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है या क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो बोर्ड ने इस साल से या इस साल स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के कारण चेंज किया है। तो आज हम उन सारी बातों पे फोकस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हर एक इंक्वायरीज और वो सारे पॉइंट्स जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं, everything I will clear to you. So let us start the video. Very first thing, the prescribed books. We all know that we are having two books. That is, first one is Flamingo and second one is Vistas. Flamingo is the main book and Vistas is the supplementary book for you. Now, due to COVID-19 pandemic, some of the chapters has been deleted from your syllabus. So let us try to know what are those topics. From reading section, notes making and summarizing has been deleted. It will not be asked in your examinations, neither in half yearly examination nor in board examination. So पहली बात ये कि नोट्स मेकिंग एंड समरी राइटिंग आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, लिटरेचर। अगर हम फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन से 3 चैप्टर्स डिलीट किए गए। दे आर पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस और एंड वन पोएम हैज़ बीन डिलीटेड, दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। From Vistas, 3 chapters has been deleted. The Tiger King, Journey to the End of the Earth, Memories of Childhood. ये 3 चैप्टर्स आपके विस्टाज से भी डिलीट किए गए हैं। मतलब अब आप इनसे भी क्वेश्चंस नहीं पाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अब वहीं पे एट द सेम प्लेस इफ वी टॉक अबाउट योर राइटिंग सेक्शन, फ्रॉम इन राइटिंग सेक्शन शॉर्ट राइटिंग टास्क से आपका पोस्टर मेकिंग एंड लेटर से बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स, ये 2 टाइप के लेटर्स डिलीट किए गए हैं। और स्पीच एंड डिबेट, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता था एक जो है स्पीच और डिबेट का इंटरनल ऑप्शंस के द्वारा, ये 2 चैप्टर्स भी डिलीट कर दिए गए। तो ये तो वो पोर्शन रहा जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि जो है क्या डिलीट किया गया। अब मैटर ये रही होता है कि आखिर हमारे सिलेबस में है क्या, व्हाट इज़ इन आवर सिलेबस। सो हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ है। So students, you can see over here it is a revised chapter wise syllabus 2021 मीन्स 2020-2021 में आपका जो चैप्टर वाइज सिलेबस है। पहली बात हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन से एज आई टोल्ड यू दैट नोट्स मेकिंग एंड समरी राइटिंग हैज बीन डिलीटेड, सो you are left with only reading comprehension. You are going to get 2 passages for reading comprehension of 2 passages of 10 marks each. एंड क्वेश्चंस का जो है तरीका होगा वो MCQ बेस्ड होगा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो रीडिंग सेक्शन से आपके पास केवल 10 मार्क्स
10 मार्क्स के 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन होंगे. नोट्स मेकिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर syllabus and summary writing also. In writing section, if we talk, in short writing task we have 4 topics. Earlier we had 5 topics, but now since poster making has been deleted from the syllabus, so we are left with 4 topics. They are notice drafting, advertisement drafting, invitations drafting, and replies to invitations. And in long writing tasks we have letters. Now we are left with 2 types of letters. One is application for job and another is letter to editor. The second topic after letter writing is the article writing that we have to study, and report writing. These 3 topics in long writing tasks. Now in literature, in Flamingo prose, we are left with 5 chapters. The last lesson, The Lost Spring, Deep Water, The Rat Trap, and Indigo. These 5 chapters in prose section. And in poetry has also, we are having 5 poems. The first one is My Mother at 66. Second one, An Elementary School in a Classroom in a Slum, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, and Jennifer's Tigers. So students, chapter 2, An Elementary School Classroom in a Slum, यहाँ पे स्कूल और क्लासरूम के बीच में इन लिखा हुआ है. ये जो है क्लर्कियल मिस्टेक है, इसको आप जो है माइंड मत करिएगा. And in Vistas we have now 5 chapters, mean 5 prose from Flamingo, 5 poems from poetry section of Flamingo, and 5 chapters from Vistas. The chapters from Vistas are the 3rd level, The Enemy, is Should Bizarre Hit Mummy, On the Face of It, and Evans Tries an O level. Only these 5 chapters. Now after getting information about the chapters that are in our syllabus, now let us proceed to the nature of questions that will be asked in our question paper. So please proceed to it. Let us start from reading comprehension. As you can see, 20 marks reading comprehension is going to be asked to you. The first question in reading comprehension will be multiple choice questions based on one unseen passage to assess comprehension, interpretation, and inference. Vocabulary and inference of meaning will also be assessed. The passage will be factual, descriptive, or literary. 10 out of 11 questions to be done. So as you can see, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपको एक पैसेज मिलेगा. यू विल बी गिवन अ पैसेज. इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन और इन्फ्लुएंस को एसेस करना होगा. वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे. यू विल बी गिवन 11 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 10. आपको कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. And question number 2 will also be a multiple choice questions based on one unseen case based factual passage. ये कोई केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा. इसमें कि वर्बल और विजुअल इनपुट्स होंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, चार्ट्स होंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होंगी. और इसमें भी आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे. MCQ नेचर के ही होंगे. 10 out of 11, I mean you will be given 11 question and you will have to attempt any 10 question. So in both the passages you can see both the questions, both the passages questions on both the passages will be of MCQ nature. दोनों पैसेज पे जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ नेचर के होंगे और आपको
11 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको जो है 10 क्वेश्चन करने होंगे दोनों में। अच्छा, एक बात मैं शुरू में बताना भूल गया, आपका पेपर अब ब्रॉडली 2 भाग में डिवाइड होगा। योर क्वेश्चन पेपर विल बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। ओके, पार्ट ए भी 40 मार्क्स का होगा एंड पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा। देखिए, पार्ट ए का 20 मार्क्स तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होगा, फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिटरेचर से आएंगे। अब ये लिटरेचर के क्वेश्चन एक्चुअली जो पार्ट ए है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। आई मीन इस पार्ट से आपके पास केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर हम 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब बात आती है लिटरेचर से। इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 20 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर, वो भी एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो होगा, जो कि आपके लिटरेचर से होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 prose extracts, one each from the book Flamingo and Vistas, to assess comprehension and appreciation. Refer to the lines to answer questions based on the given extract. Any 2 out of 3 extracts to be done. Meant फ्लेमिंगो एंड विस्टास के जो प्रोज के चैप्टर्स हैं उनमें से आपको 3 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। अब ये 3 एक्सट्रैक्ट में हो सकता है कि 2 फ्लेमिंगो से हो, 1 विस्टास से हो, या 2 विस्टास से हो, 1 फ्लेमिंगो से हो। इट मीन आपको करने हैं दोनों बुक से, आपको प्रिपेयर करना है दोनों बुक्स के प्रोज के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हर एक एक्सट्रैक्ट पे, और आपको 3 दिए जाएंगे। 3 में से 2 एक्सट्रैक्ट को आपको अटेम्प्ट करना होगा। यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 एक्सट्रैक्ट्स, और आपको प्रयास ये करना है कि 1 एक्सट्रैक्ट आपका फ्लेमिंगो से आप अटेम्प्ट करें और 1 एक्सट्रैक्ट आप विस्टास से अटेम्प्ट करें। तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। आई मीन 2 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो 8 मार्क्स का तो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया प्रोज सेक्शन से। देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। अब चूंकि पोएट्री सेक्शन केवल फ्लेमिंगो में है, तो फ्लेमिंगो से जो पोएम्स आपके सिलेबस में हैं 5 पोएम्स, उन 5 पोएम्स में कोई एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस और इन्फ्रेंस को असेस करना होगा। आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके लाइंस के बेस पे आपको जो है एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करने होंगे। इसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट any one. So 4 marks MCQ type questions from the extract based questions. Now 6th question will be text based questions to assess comprehension, analysis, inference and interpretation from the books Flamingo and Vistas. 8 out of 10 questions to be done. Meant आपको 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे अप 1 मार्क्स ईच, और ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे। आपको जो है चैप्टर, आपकी जो चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन है, एनालिसिस है, इन्फ्रेंस है, इंटरप्रिटेशन है, उस पर बेस्ड फ्लेमिंगो और विस्टास, इन दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं, इन पर बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मीन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टास, और आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं कुल। ओके, सो ये आपके 20 मार्क्स क्वेश्चंस हो गए लिटरेचर के। तो ये पार्ट ए जो है
पार्ट ए का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका मैंने आपको एक जो है आइडिया यहाँ पे दिया। नाउ आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं पार्ट बी की ओर, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे 40 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। यू आर गोइंग टू गेट टू बी आस्क्ड 40 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 बनेगा शॉर्ट राइटिंग टास्क का। आपके पास क्वेश्चन 1 में नोटिस और एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन होंगे। यू विल बी आस्क्ड ईदर नोटिस और एडवर्टीजमेंट अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। मीन्स आपको नोटिस और एडवर्टीजमेंट टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना होगा और ये अब 3 मार्क्स का होगा। अर्लियर इट वाज ऑफ 4 मार्क्स, पहले ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, लेकिन अभी जो है जो रिवाइज्ड जो पैटर्न है इसमें ये 3 मार्क्स का है। मीन्स फॉर्मेट पे 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट पे 1 मार्क्स मिलेगा और एक्सप्रेशन पे भी 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन 2 विल आल्सो बी अ शॉर्ट राइटिंग टास्क और इसमें आपको इनविटेशन और इनविटेशंस की रिप्लाईज। मीन्स अभी एक फिक्स हो गया कि इनविटेशन राइटिंग पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 2 तरह के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, और उनकी रिप्लाईज पूरा कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो हमने आपको बना के दिया हुआ है। आप अगर भूल रहे हैं तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पूरा आपको 2 तरह के इन्विटेशंस और उनकी रिप्लाईज के बारे में भी हमने आपको पूरा बताया हुआ है। ये आपका अब फिक्स हो गया है, एक इन्विटेशन तो आपको करना ही है, चाहे वो फॉर्मल में आए, इनफॉर्मल में आए या उसका रिप्लाई करने के लिए आए। 3 मार्क्स इट विल आल्सो बी ऑफ 3 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर्मेट, 1 मार्क कंटेंट एंड 1 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। सो ये आपका हो गया 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट राइटिंग टास्क। नाउ क्वेश्चन 3 विल बी बेस्ड ऑन लेटर्स। हम लोगों ने देखा कि अभी सिलेबस से आपका ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर दोनों टॉपिक्स हट गए हैं, तो अब आपके पास 2 तरह के लेटर्स हैं, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड लेटर्स टू द एडिटर। अब आपको इन्हीं 2 तरह के लेटर्स पूछे जाएंगे। यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर एनी वन। इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ओनली, 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। सो लेटर बेस्ड ऑन verbal or visual input to be answered in approximately 120 to 150 words. Letter types include application for a job, letters to the editor, giving suggestions or opinion on issue of public interest. 1 out of 2 given questions to be answered, 5 marks. Now, question number 4, article and report writing. ये भी it's also descriptive and analytical in nature based on verbal inputs to be answered in 120 to 150 words. 1 out of the 2 given questions to be answered, 5 marks का ये भी होगा। इसका भी जो मार्किंग स्कीम होगा वो 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट पे मिलेंगे, 2 मार्क्स कंटेंट पे मिलेंगे एंड 2 मार्क्स विल बी गिवन ऑन एक्सप्रेशन। नाउ इन दिस वे आपने देखा कि 16 मार्क्स का तो आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। अब बचा 24 मार्क्स। ये 24 मार्क्स आपके होंगे फ्रॉम लिटरेचर सेक्शन। चलिए देख लेते हैं इसका कैसे होगा। देखिए ये बहुत कुछ जैसे पहले था वैसे ही होने वाला है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज, पोएट्री,
from prose and poetry from the book Flamingo to be answered in 30 to 40 words. Questions should elicit inferential responses through critical thinking. 5 into 2 is equal to 10. मीन्ट ये जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 दिए जाएंगे, आपको 5 करना होगा, 2 मार्क्स के ईच होंगे, 2 मार्क्स से होंगे। ये प्रोज और पोएट्री दोनों से होंगे और फ्लैमिंगो बुक से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में यू विल बी गिवन 3 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फ्रॉम द बुक विस्टास। In 30 to 40 words each, questions should elicit inferential responses through critical thinking. 2 into 2 is equal to 4. Meant 10 marks short questions from Flamingo and 4 marks short questions from your vistas. After that, question number 8 will be one long answer type question from prose oblique poetry from the Flamingo to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as inference points. Any 1 out of 2 questions to be done. Meant 5 question, 1 marks, 1 question for 5 marks. Another is one long answer type question based on the chapters from the book Vistas to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, theme as reference points. Any 1 out of 2 questions to be done. Meant 1 question of 5 marks. So it will be from vistas. In this way, you are going to get your chapters. Here is the question paper design that you can see. 25% marks will be from reading passage. 20% marks will be from creative skills, creative writings, and 55% marks will be from literature. In this way, 80 marks written question paper will be designed, and after that 20 marks internal assessment, that will be assessment of listening and speaking skills. So students, in this way today I have tried to summarize all the changes that has been introduced by CBSE regarding your syllabus and question paper pattern for the coming examinations. I hope that this video will be of great importance, great value for you. Thank you. Have a nice day.